Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about especially vocab. In this lecture we will learn the vocab about special don't news, especially which is very important. हम ये डॉन की vocab है ये लेके आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे सिंपल और इसी तरीके से. Before going to our topic, if you didn't do subscribe YouTube channel, do subscribe, like, comment, share. Because as you know that I bring such kind of especially video lectures which is very important. आपके लिए वो क्या अच्छे होते हैं, आपके लिए है very helpful होते हैं. हम especially I make promise you if you watch from starting to ending, then you will be able to understand very soon. You will be able to lock the vocab in your mind definitely, because I teach you vocab in different way with a different technique, with a different methods. You can lock the vocab by making simple way and easy. So definitely again I say you do subscribe, like, comment, share. So let's start. First we have what is Sali. The meaning of the Sali means make something that's dirty. Make something that's dirty. Tarnish चीजें हैं वो क्या Sali है. Tarnish means tarnish. If we talk about the meaning of the tarnish means attachment, like tar की जैसे है वो क्या tarnish है, वो खराब हो रही है क्या, something that becomes worse, something that becomes worse, also known as tarnish or Sali. We will move on. Another word, so we have buttress. Buttress means butt and race. Buttress means fortify और bolster. Fortify, fort से याद करें, fort क्या है, एक support करता है, एक क्या है, something that's like hold, make strength करता है, वो support करता है, वो क्या है, fortify है. Fortify fort से भी याद कर सकते हैं, या ये fortify क्या है, ये verb है, ये fort क्या है, ये noun है. मीन्स जो हमारा किला होता है वो क्या है, हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट, हमें से प्रोवाइड करता है bolster. बट्रेस मीन्स fortify मजबूत करना, सपोर्ट देना, या bolster या फोर्ट मीन्स किला. ये क्या है, नाउन है. सो we have another word, prejudice. Prejudice means preconceived opinion that's not based on reason. Pre means initial, judice ऐसा जो वियन जो ख्यालात जो ओपिनियन दिए जाते हैं वो रीजन पे बेस्ड ना हो, उसको क्या कहते हैं, प्रीजडिस. प्री मींस इनिशियल, जज मींस जज से याद करो, जो उस जज ने जो भी इनिशियल जो भी ट्रायल का जो था, ट्रायल था उसमें जो भी रीजन दिए गए हैं, जो भी सबूत दिए गए हैं, वो क्या है, समथिंग दैट्स नॉट टू बी रीजनिंग बेस्ड पे नहीं है. We have another word, quandary. The meaning of this word quandary means a state of confusion, like dilemma is state जहाँ से क्या quandary हो रही है, जहाँ से क्या एक situation dilemma हो रही है, situation danger, situation confusion, जहाँ से disorder, people क्या fighting कर रहे हैं, क्या एक स्टेट को क्वांटरी अटैचमेंट है. क्वार्टर में क्या एक चीज़ें एक बात करता है, दूसरी बात करता है, तीसरी बात करता है. क्वांटर स्टेट लाइक कन्फ्यूजन, वहाँ से क्या डिसऑर्डरली फाइटिंग हो रही है, वो उसको क्या कहते हैं, क्वांटरी कहते हैं, क्वांटरी. अनदर वर्ड इज डेक्स्ट्रस. इसकी मीनिंग है अडेप्ट और डेफ्ट. डेक्स्ट्रस ये क्या एडजेक्टिव है, अगर बोलूँ तो ये क्या है, नाउन. Dexterous in participle, its adjective means adept or deft. और जो skills है, ऐसा बंदा जिसके पास क्या adept है. Adept means adopt. ये किससे बना है, adopt से बना. आप कोई adopt करती हो means something that you have ability, you have skills to adopt, also means adapt. वो adept है, वो डेफ्ट है, डेफ्ट भी उस adopt से बना है. adopt से adept किसी भी वर्ड से आप याद कर सकते हैं. इसकी माना क्या है, स्किल्स. ऐसी स्किल्स जो आप अडॉप्ट कर चुके हैं, मीन्स टू सर्वाइव, टू अडॉप्ट मीन्स टू गेन फ्यू स्किल्स. ओके. अनदर वर्ड इज लंबस्ट. ये क्या वर्ब भी है, नाउन भी है, दोनों. लेकिन इस वर्ड की मीनिंग है कुछ किसी को बुरा भला कहना. लंबस्ट मीन्स से लाइक क्रिटिसाइज. हम क्रिटिसाइज जनरली वी कैन नॉट से. अगर मैं बात करूँ मीन्स क्रिटिसाइज तो हम नहीं कह सकते हैं जनरली, मतलब सेंस इसका क्रिटिसाइज लाइक है. क्यों, रीजन यही है, क्रिटिसाइज मीन्स टू से समथिंग लाइक इन रॉन्ग वे, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कुछ कहना. लेकिन लंबस्ट की मीनिंग है, अगर मैं बोलूँ डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन वो डाटा रियल नहीं प्रोवाइड करता है, या वो सपोज
वो जो ट्रायल चल रहा है, सपोज हम बहुत बात करें किसी भी कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल क्या एक रीजनिंग बेस्ड नहीं है, तो जजेस कहें कि जो भी आपने रिपोर्ट दे दी है वो क्या एक झूठी रिपोर्ट है, जो भी आपने डाटा पे सबमिट कर दी है वो क्या झूठी है, अनरीजनिंग बेस्ड है, वो क्या है जजेस क्या कहेंगे वहाँ से लंबिस्ट करेंगे, वो क्या है लंबिस्ट करेंगे। लंबिस्ट मीन्स टू से समथिंग दैट्स रॉन्ग, किसी को बुरा भला कहना, मीन्स यू आर समथिंग लाइक आपको है, आप इसी मैटर का आप ही प्रॉब्लम है, किसी को बुरा भला कहने को क्या कहते हैं लंबिस्ट कहते हैं। लंबिस्ट मीन्स टू से समथिंग रॉन्ग, किसी को बुरा भला कहना। वी विल मूव ऑन अनदर वर्ड से शैग्रन, इसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी शैग्रन। शैग्रन मीन्स ह्यूमिलेशन का, किसी को शर्मिंदा करना वो क्या शैग्रन है, ह्यूमिलेट करना। टू बी ह्यूमिलेट also the humiliation or chagrin, it was a chagrin act, it was a chagrin in which people were to be humiliated, वो people का humiliated थे। chagrin means humiliate, general word है, humiliate also known as chagrin, chagrin। okay, we have another word conflict, conflict, conflict नहीं conflict, conflict को means coordinate या मिलाना किसी को, उसको को कहते हैं coordinate मीन्स कॉम्बाइन टू आर मोर स्टेट्स, दो चीज़ों को मिलाते हैं, कोई चीज़ को मिलाते हैं वो क्या कॉन्फ्लेट है। मीन्स इफ़ यू हैव टू थिंग्स, इफ़ यू हैव टू फ्लेट, यू वांट टू कॉम्बाइन टुगेदर, यू वांट टू ऐड टुगेदर, यू कैन से आई हैव कॉन्फ्लेटेड दिस फ्लेट, आई हैव कॉन्फ्लेट दिस फ्लेट, मैंने क्या इसी फ्लेट को एक फ्लेट का दूसरे से मिला दिया है, मीन्स कॉन्फ्लेट कर दिया है। अनदर वर्ड से ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव इसको याद करना चाहते हैं तो ल्यूक्रेटिव ये क्या लक से भी याद कर सकते हैं। ल्यूक्रेटिव मींस समथिंग दैट इज वेरी वेल, ये ट्रिक्स भी बना सकते हैं इफ यू वांट टू मेक द ट्रिक ऑफ दिस वर्ड। अ ग्रेट प्रॉफिट और रिम्यूनरेट, रिम्यूनरेट मींस समथिंग दैट जिससे आपका फायदा आपको ज़्यादा हो, क्या है वो ल्यूक्रेटिव है, लकी है। यू आर ल्यूक्रेटिव गाय, यू आर ल्यूक्रेटिव गाय, यू हैव गॉट मच मोर प्रॉफिट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट से आपने बहुत ज़्यादा फायदा उठा लिया है, उसको क्या कहते हैं ल्यूक्रेटिव कहते हैं। यहाँ से बोलें आप ल्यूक्रेटिव बाय हैं, आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है उसी बिजनेस से, उसी काम से, उसी प्रोजेक्ट से, उसी रिसर्च से, उसी मौके पे, तो क्या ल्यूक्रेटिव। दूसरा हमारा ये वर्ड है इम्पिंज। अगर मैं बोलूँ, मैं आपको इससे पहले एक ही लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, एंड इन दैट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग द वर्ड व्हिच हैविंग एम, जैसे कि आई एम, यू एन, इस जैसे जो भी वर्ड्स हैं, जैसे ए भी आ जाता है किसी वर्ड में, जैसे कि अग्रेसिव, अग्रेसिव, प्रोग्रेस, अग्रेसिव, प्रोग्रेस, अग्रेसिव, में से एक तरक्की हो रही है, एक तरक्की नहीं हो रही है। में से हम बात करें तो क्या जिसकी मीनिंग होती है समथिंग दैट्स नेगेटिव, वो क्या कुछ नेगेटिव से रिलेटेड होती है, वो क्या इम्पिंज है। आई एम इम्पिंज मीन्स वेरी बैड इम्पैक्ट, जो क्या तरक्की नहीं हो रही है, जो क्या प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो क्या उस पर बैड तासरात हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल इकानमी आल इन इम्पिंज, वो क्या इम्पिंज हो रही है ग्लोबल इकानमी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, क्या किसकी वजह से, ड्यू टू द कोविड-19 ग्लोबल इकानमी इज ऑन इम्पिंज डायरेक्शन। ओके, दूसरा वर्ड है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट ये स्टेट से लिया गया है, स्टैच्यूट मींस यू कैन लाइक दिस वर्ड स्टेट, ये वर्ब है रिटन बाय लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसने रिटन किया है, उसने लिखा है, या स्टेट ने लिखा है, इसको कहते हैं स्टैच्यूट। इट वाज स्टैच्यूएटेड रिटन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दैट वाज शेयर्ड विद डॉन न्यूज़, वो क्या जो लेजिस्लेशन बॉडीज है उसने क्या रिटन किया, उसने लिखा है, पूरा जो डॉक्यूमेंट डेटा है वो उसने जो लिखा गया था उसको शेयर किया डॉन से। दूसरा वर्ड है एक्सोनेरेट। मैं बोलूँ एक्सो, इसकी टर्मिनोलॉजी भी देखें तो एक्सो मीन्स आउट, नेरेट मीन्स कहना, किसी को कहना। एक्सोनेरेट मीन्स किसी को कहना वो बाहर हो जाए, किसी को कहना वो बाहर हो जाए, मीन्स वो कुछ न कुछ क्या किसी ने गलत काम कर दिया उसको कहना एक्सोनेरेट। इफ वी फोकस द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस वर्ड, एक्सोनेरेट मीन्स प्रोनाउंस गिल्टी ऑफ क्राइम, किसी भी बंदे को प्रोनाउंस करना वो इसी प्रॉब्लम का इन्वॉल्व है, वो उसने वो क्राइम किया है, उसको क्या कहते हैं एक्सोनरेट कहते हैं। एक्सो मीन्स आउट, नेरेट मीन्स बोलना, उसको बोलो वो आउट हो जाए, उसको बोलो वो आउट हो जाए, वो इसी मुकाम के काबिल नहीं है। ही वाज exonerated by the court and he was put into jail, इसको जेल में भेजा गया, कोर्ट ने क्या इसको एक्सोनरेट किया, कोर्ट ने क्या एक्सोनेट करके बताया ये एक क्राइम का एक सबब बन रहा है। दूसरा वर्ड है एक्सोटिक। एक्सोटिक मीन्स आउट नंबर, ऐसा नंबर जो क्या कम है, समथिंग दैट्स वेरी रेयर
if we talk about the term of this word, especially in biology, if we talk about the term biology, exotic means some certain kinds of species that have become especially exotic species. हम अगर बात करें तो क्या स्पेशली पार्कर में क्या पेकुआ के हो गया एक्सोटिक हो रहे हैं, मीन्स आउट नंबर हो रहे हैं, उसकी जो नंबर है वो क्या कम हो रहे हैं, मीन्स समथिंग दैट स्टार्ट्स टू डिक्रीज आल्सो मींस एक्सोटिक। तो ये क्या एक्सो नरेट जैसा क्या है, नरेट मीन्स कुछ को किसी को कहना कुछ कहना, एक्सोनेट मीन्स किसी को कहो वो बार हो जाए, उसने क्या गलत काम कर दिया है। दूसरा वर्ड है रिवेज। रिवेज मीन्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो कि खराब है वो क्या रिवेज है। रिवेज मीन्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आल्सो नोन एज रिवेज। एंड वर्ड इज फूल मीन्स सडी, बेवकूफ जिसको कहते हैं बेवकूफ। लड़की तो क्या फूल है, लड़की तो क्या फूल है, सब याद कर सकते हैं लड़की, शी इज अ फूल, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इफ यू वांट टू यूज शी इज अ फूल, शी क्या एक फूल लग रही है लेकिन वो क्या मासूम है, तो ऐसा ही होगी, सब याद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मीन्स वाइल्ड डिसऑर्डर, नॉइजी, कंफ्यूजन, ऐसी सुरताल जहाँ से आप मतलब पता नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ से फाइटिंग हो रही है, डिसऑर्डर एक मींस सच काइंड ऑफ वायलेशंस दैट इज गोइंग ऑन, वो चल रहा है, उसको क्या कहते हैं पेंडेमोनियम कहते हैं, पेंडेमोनियम। And if we talk about the meaning of this word, means a state place where clash would be there, इसी जगह जहाँ से क्लेश किया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम स्पेशली ये क्या है पेंडेमोनियम। उसके बाद हमारी दूसरा वर्ड है इन्फ्यूरेट, मीन्स मेक फ्यूरियस आर एंग्री, किसी को गजबनाक करना, किसी को मतलब नाराज करना, किसी को गजबनाक करना, उसको कहते हैं फ्यूरियस। फ्यूरियस क्या होते हैं, गजबनाक लोग होते हैं जो एंग्री होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे एंग्री होते हैं। लिटरली मीनिंग हम एंग्री कह सकते हैं, बट द सिनोनिम इज फ्यूरियस मींस इन्फ्यूरिएट। ये वर्ब है, ये फ्यूरियस क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन्फ्यूरिएट मीनिंग इज फ्यूरियस। ऐसा बंदा वो क्या गजबनाक हो रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, इन्फ्यूरिएट है। He was infuriated to see such a condition, उसी कंडीशन को देख कर ये क्या infuriate हो गया। Another word is speculation. Speculation ये क्या है noun, इसकी माना क्या है ideas or notion, ख्यालात। हम जो भी अंदाजा लगाकर ख्यालात देते हैं, जो भी राय देते हैं उसको क्या speculation कहते हैं, speculation कहते हैं। ओके, another word is demote, एक है remote और दूसरा demote। remote मीन्स दूर वाली चीजें, एक दूर वाली चीजें हैं, remote मीन्स फार अवे। एक demote, डी मीन्स हटाना, री मीन्स दोबारा, वो री मीन्स अगेन या दोबारा। डिमोट मीन्स समथिंग दैट चेंज, जो दूर वाली चीज है उसको हटाकर उसकी पोजीशन चेंज करना, उसको क्या कहते हैं डिमोट कहते हैं। या चेंज द रैंकिंग ऑफ एनी जॉब, किसी भी जॉब की रैंकिंग को चेंज करना, किसी भी डायरेक्शन को चेंज करना, किसी भी चीज को चेंज करना, उसको क्या डिमोट करना। डिमोट मीन्स टू चेंज द रैंक, टू चेंज द स्टेटस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का वो चेंज करना, वो क्या डिमोट है। Another word is laden, ये वर्ब है laden इज ladened, हाँ loaded, laden ये क्या loaded है। definitely if you talk about the meaning of this word, laden means loaded, ये लोड किया जा रहा है वो क्या laden है। डेफिनेटली जो हम क्या सपोज बात करें दिस वर्ड स्पेशल बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, जो भी गाड़ी है उसको लोड किया जाता है, जो भी उसको सामान लगेज के साथ उसको फिल किया जाता है वो क्या लेडन है। लास्ट वर्ड इज ये है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स ब्रेकिंग टू मैनी पीस। एक फ्रेगाइल ये फ्रेगमेंट से बना है, अगर फ्रेगमेंट से भी आप कर सकते हैं। फ्रेगाइल मीन्स फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मीन्स टू ब्रेक इनटू मैनी पीस। और दूसरा वर्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमी इज ऑन फ्रेजाइल डायरेक्शन। फ्रेजाइल मीन्स गोइंग इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, लेगिंग डाउन हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमी क्या है लेगिंग डाउन हो रही है, फ्रेजाइल हो रही है। द डाटा विल रीजन, इट विल शो दैट वेदर हाउ मेनी परसेंटेज, हाउ मेनी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वुड हैव बीन इफेक्टेड बाय द कोविड-19। तो वो डाटा शो करेगी कितनी फ्रेजाइल हुई है कोविड-19 की वजह से, डाटा शो करेगी एंड ऑफ दिस ईयर, इसी साल के आखिर में वो डाटा रिलीज होगी। एज इट विल रिलीज द डाटा, डेफिनेटली आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट यू मस्ट वॉच दैट वीडियोस टिल यू डू इट फॉर स्पेशली। सो आई होप स्पेशली ये लेक्चर वोकैब लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, आप ज़रूर कमेंट में ये बता दीजिएगा हाउ वाज दिस लेक्चर, इफ़ दिस वाज मोर हेल्पफुल, इफ दिस वाज मोर स्पेशली फ्रूटफुल फॉर यू, देन व्हाट शुड यू डू।
then you need to do subscribe, like, comment and share. If you have any query in your mind, you put it in the comment section. I will try to upload. I will try to explain it in a simple and easy language. We need to crush it, we need to crack it, we need to crush it. So it's our time. ये क्या है, प्रेजेंट वाला टाइम है, इसमें हमें करना चाहिए. So जाने से पहले I want to share a quotation with you. You must have dream while doing work. आपके पास कोई न कोई ड्रीम होना चाहिए जब कुछ करना. जैसे कि आपके पास ड्रीम है कि you have dream to learn English. This dream you must keep along with you, and then you keep on your journey. And definitely, so thank you so much. Bye bye and take care of it.